سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں؟ جواب ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے ام الکتاب کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ سوال ہے تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد ان میں روح کیسے داخل ہوئی؟ جواب ہے نتنوں کے راستے سے۔ جبل سینا کا تعلق کس نبی سے ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ سوال ہے جنگ قاسیہ میں اسلامی لشکر کی قیادت کس نے کی؟ جواب ہے سعد رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی وقاص نے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا بدن کس چیز سے بنا ہوا تھا؟ سیاہ مٹی کے خشک گارے سے۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ کس سورت میں مذکور ہے؟ جواب ہے سورہ کہف رکو 9-10۔ سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام کی دعوت حق کس قوم کے لیے تھی؟ جواب ہے بابلی قوم کے لیے تھی۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کون سی سبزی پسند کرتے تھے؟ جواب ہے کدو۔ سب سے زیادہ زندہ رہنے والا جانور کون سا ہے؟ سب سے زیادہ عرصہ تک زندہ رہنے کا ریکارڈ ہاتھی کا ہے۔ صلیبی جنگوں کے فاتح صلاح الدین ایوبی کا مزار کہاں ہے؟ دمشق میں۔ سوال ہے عقیدہ کی مثال کس جیسی ہے؟ جواب ہے بیج جیسی۔ قربانی کے لیے بکری، گائے اور اونٹ کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ بکری 1 سال، گائے 2 سال کی اور اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے۔ کس سبزی کا رس سر پر لگانے سے بال سفید نہیں ہوتے؟ سر پر مولی کا رس لگانے سے بال سفید نہیں ہوں گے۔ سوال ہے کہ صحابی نے مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدی؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون سی انجیل صحیح انجیل کے قریب سمجھی جاتی ہے؟ انجیل متی۔ مسجد قباء کا دوسرا نام کیا ہے؟ مسجد تقوی۔ سوال ہے نماز پڑھنے سے پہلے وضو کس صورت میں لازم قرار دیا گیا ہے؟
जवाब है सूरह मायदा में। वो कौन था जिसने दोबारा घोड़े से ठोकर खाने के बाद उस बात को समझ लिया कि ये सब खुदा की मर्जी से हो रहा है? सिराका बिन जाशिम ने। सवाल है, अद्वियात बनाने के इल्म को दुनिया में सबसे पहले मुतारिफ करवाने वाले मुसलमान का नाम क्या है? जवाब है इब्ने सीना। बताएं, सबसे पहले खाना काबा का दरवाजा किसने बनवाया था? खाना काबा का दरवाजा सबसे पहले कसी बिन कलाब ने बनवाया था। तरबूज सब्जी है या फल? तरबूज दर हकीकत एक सब्जी है। सवाल है, जनाब खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का लक़ब क्या और क्यों मशहूर था? जवाब है ताहिरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, और ये इनकी पारसाई और पाक दामनी के बाइस मशहूर था। सवाल है, जहन्नुम के 7 दरवाजे हैं, कुरान मजीद में ये कहाँ कहा गया है? जवाब है सूरह हिज्र में। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज का रुख किसने बदल दिया था? एक चूंटी ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज का रुख बदल दिया था। सवाल है, हजरत हारून अलैहिस्सलाम को जो लिबास बाइसत नबूवत पर अता किया गया था किस किस्म का था? जवाब है सोने और चांदी के तारों से बना हुआ था। आसमानी, अर्गवानी और सुर्ख कपड़ों और बारीक कतान से तैयार किया गया था। इनका जब्बा आसमानी रंग का था, इस पर गोटा और झालर लगी हुई थी। सवाल है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक चचा कौन था जिसके नाम से कुरान पाक में सूरत भी मौजूद है? जवाब है अबू लहब। खाना काबा के अंदरूनी दरवाजे का क्या नाम है? खाना काबा के अंदरूनी दरवाजे का नाम बाबू तौबा है। सूरह कहफ की तिलावत किस फितने से बचाती है? दज्जाल के फितने से। तलाक की मारूफ इकसाम कितनी और कौन कौन सी हैं? दो, तलाक रजई और तलाक बाएं। सवाल है, गज़वा ओहद में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कितने सरदारों को कत्ल किया? जवाब है 13। कर्ज अदा करने में टाल मटोल से काम लेने वालों के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बयान किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कर्ज अदा करने में मालदार की तरफ से टाल मटोल करना जुल्म है, और अगर तुम में से किसी का कर्ज किसी मालदार पर हवाला दिया जाए तो उसे कबूल करे। किस सहाबी को कुरान मजीद पढ़ते हुए शहादत नसीब हुई?
حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کس طرح سرما لگانے سے نظر کمزور ہوتی ہے؟ کھڑے ہو کر سرما لگانے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ بیٹھ کر بسم اللہ پڑھ کر 3 سلائیاں دائیں آنکھ اور بائیں آنکھ میں لگائیں۔ سوال ہے، کیا مسافر پر جمعہ فرض ہے؟ جواب ہے جی نہیں، وہ جمعے کی جگہ نماز ظہر ادا کر سکتا ہے۔ سوال ہے، مصر کا پہلا فرعون کون تھا؟ جواب ہے الوان بن سان۔ ہجرت کے راستے میں کس کی بکری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو سیراب کیا؟ ام محبت کی مریل سی بکری نے۔ سوال ہے، وہ کون شخص ہے جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر دی تھی کہ آپ علیہ السلام کے گھر میں غیر اللہ کی پوجا ہو رہی ہے؟ جواب ہے، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے جن کا نام عاصم بن برکیہ تھا، اور یہی وزیر بلقیس کے تخت کو پلک جھپکنے کی مقدار سے پہلے ہی لے آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کا نام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کا نام عقاب تھا۔ اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے سب سے پہلے اللہ اکبر کہا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہا تھا۔ سوال ہے، بیعت رضوان کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کے ہاتھ کو اپنا بایاں ہاتھ قرار دے کر ان کی طرف سے بیعت کی تھی؟ جواب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ قرار دے کر ان کی طرف سے بیعت کی تھی۔ جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں کس کی حکومت تھی؟ حبشہ میں نجاشی کی حکومت تھی۔ جنت کی لاٹھی کسے کہتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت حق سب سے پہلے کس کو دی؟ اپنے والد آزر کو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تینوں بیٹیوں کے نام بتائیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے، حضرت یونس علیہ السلام قبل مسیح کی کون سی صدی کے پیغمبر تھے؟ جواب ہے 8ویں صدی کے۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثار کرنے والے اور اشاعت اسلام کی خاطر پہلی قربانی دینے والے مجاہد حارث بن ابی حالہ کا ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا رشتہ تھا؟ جواب ہے بیٹا۔ سوال ہے، سب سے پہلے عذاب کس قوم پر آیا تھا؟
जवाब है कौम नूह पर। सवाल है शैतान सातों आसमान पर किन मुख्तलिफ नामों से मशहूर था? जवाब है पहले आसमान पर इसका नाम आबिद था, दूसरे पर जाहिद, तीसरे पर आरिफ, चौथे पर वली, पांचवें पर तकी, छठे पर खाजिन, सातवें पर अजाजिल और अब कयामत तक इसका नाम इबलीस है। सवाल है अरब में इस्लाम से कबल कितने मज़ाहिब राइज थे? जवाब है 5। कुरान पाक में हारूत और मारूत का तज़किरा कितनी बार आया है? सिर्फ एक मर्तबा। सवाल है कयामत के वजूद की नौइयत क्या है? जवाब है यकीनी है। किस सहाबी के 100 से ज्यादा पोते पोतियां थी? हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी वालदा मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर हाजिर हुई। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा बेटा अनस है, मैं इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए लाई हूँ, इसके लिए अल्लाह ताला से दुआ फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु को दुआ दी, या अल्लाह इसके माल और औलाद में इजाफा फरमा। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं आज मेरे पास ढेरों माल है और 100 से ज्यादा पोते और पोतियां हैं। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। सवाल है किन जानवरों का झूठा पानी पाक है? जवाब है आदमी और हलाल जानवरों का झूठा पानी पाक है, जैसे गाय, कबूतर, बकरी, फाख्ता, घोड़ा वगैरह। सवाल है मदीन कौम में बुत परस्ती और नजर कुर्बानी के अलावा क्या क्या बुराइयां थी? जवाब है नाप तोल में कमी और खरीदो फरोख्त में धोखा, दही और शिर्क। नमाज बा जमात पढ़ने का हुक्म कुरान मजीद में कहां दिया गया है? सूरह बकरा में। सवाल है वो कौन से सहाबी हैं जो सहाबा में सबसे पहले हौज़े कौसर का पानी पिएंगे? जवाब है आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे पहले मेरी हौज से सुहेब रूमी रजी अल्लाह ताला अन्हु पिएंगे। वो कौन से खलीफा थे जिनकी 4 नस्लें सहाबी थी? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की। कितने दिन तक हम बिस्तरी ना की जाए तो जिस्म में बदबू पैदा हो जाती है? जिन लोगों के मिजाज में गर्मी व तेजी ज्यादा होती है, अगर वो जिमा करने से बाज रहें तो उनके जिस्म में बदबू पैदा हो जाती है, लेकिन मुबाशरत से ये शिकायत दूर हो जाती है। लोथर का बयान है कि भूख प्यास की तरह आदमी को शहवत भी होती है। अस्हाबे कैफ का ताल्लुक किस मुल्क से था? शाम से। सवाल है बरे सगीर की पहली औरत हुक्मरान कौन थी? जवाब है रजी सुल्ताना। सवाल है 30 सहीफे किस नबी पर नाजिल हुए?
जवाब है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पर। जन्नत की 4 अफजल खवातीन कौन हैं? सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन पर 4 खतूत खींचे, फिर पूछा, क्या तुम इन लकीरों के बारे में जानते हो? उन्होंने कहा, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत वाली खवातीन में सबसे अफजल ये 4 हैं, खतीजा बिनते खवैलद रजी अल्लाह ताला अन्हा, फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिरौन की बीवी आसिया बिनते मजाहम और मरियम बिनते इमरान। सवाल है, हिसाब कब्र किस नबी से शुरू हुआ? जवाब है हजरत नूह अलैहिस्सलाम से। सवाल है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिस हवारी ने गिरफ्तार कराया था उसका नाम क्या था? जवाब है यहूदा। हजरत वैशी रजी अल्लाह ताला अन्हो जिंदगी भर क्या खास कलमा कहा करते थे? ये कि मैंने दौरे जहालियत में एक बेहतरीन इंसान हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद किया और अपने दौरे इस्लाम में बदतरीन आदमी मुसलमा कज़्ज़ाब को कत्ल किया। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त कौन सा पहर था? सुबह सादिक का वक्त था। सवाल है, जमीन अव्वल का नाम क्या है? जवाब है अव्वल जमीन का नाम अदमिया है। सवाल है, शिर्क का मुतजाद लफ्ज क्या है? जवाब है तौहीद। इराक की लैंग्वेज क्या है? अरबी। फरिश्तों की तादाद कितनी है? बेशुमार। कयामत के करीब नेक आदमी की क्या निशानी होगी? लोग सराह जिना करेंगे, इस वक्त सबसे ज्यादा नेक आदमी वो होगा जो जानी को नसीहत करेगा, जरा दीवार के पीछे चले जाते। किस सहाबी की आवाज 1000 आदमियों की आवाज पर भारी थी? गज़वा ओहद में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो के जज्बा फिदिया से मसरूर होकर इरशाद फरमाया, लश्कर में अबू तलहा की आवाज 1000 आदमियों की आवाज पर भारी है। सवाल है, किसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतर तैयार की? जवाब है हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो अंसारी ने बगली कब्र तैयार की। क्या नमाज जनाजा कज़ा करके पढ़ी जा सकती है? जी नहीं। नबूवत मिलने के वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किस नबी की कफालत में थे? हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कफालत में। वाक़या मिराज से क्या मुराद है?
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس، جنت و دوزخ اور آسمانوں کا سفر۔ وہ کون سی چیز ہے جسے توڑ کر ہر بندہ خوش ہو جاتا ہے؟ ریکارڈ۔